Hmm. So we come to Pisces. So Pisces is the 12th or the last sign of zodiac. This is Sant sign, or it is supposed to be sign of religion, sign of monks. At- and it is represented by two fishes going in the opposite direction. Now it becomes a dual sign, like it is because it is ruled by Jupiter. So it makes one of the person makes very confused. Hmm? कि ये साइड जाए कि ये साइड जाए, कौन से साइड जाएगी. सो द कंफ्यूजन इन पाइसेस इज टू be money minded or to be contented or to be religious in nature. Means there is a confusion between practicality and emotionality as far as Pisces is concerned. So usually you will find monks who suddenly who suddenly realize that there is nothing in worldly affair. Now in Corona or in this COVID crisis, all of us, especially me, I realize that you have to live for today. You don't know about tomorrow. So we are being ambitious, we are trying to save money for future, or we built up our ego, we want to achieve so many things, but then suddenly you feel that this all is mithya, or this all is useless, because nobody knows what is going to happen tomorrow. Tao philosophy, if you, it's one of the greatest philosophy. uh, it's a multi-religion philosophy. Means if somebody has books, just go through Tao philosophy. Tao, it's basically Chinese philosophers. So there was I just read a book some time back of related to Tao. So somebody went into his hut. And he said, why are you staying here? Why don't you come with me to गांव में क्यों रहते हो, शहर में आ जाओ, why don't you come there? तो बोले, so what will happen? You can earn more money from there. Okay, so with money what I'll do, you can get luxuries. So that what, then you'll be happy. But I'm happy here only in my hut. So why I need to go there? So that contentment or just being an observer, that is Tao philosophy. So for him, they don't believe in arguments, they don't believe in criticism. They just want to be an observer of whatever is going around you. Like what we have in Hahnemann philosophy, just you have to be an unprejudiced observer. So that is Pisces. Means Gautam Buddha, Mahavira, Lord Mahavira, they had everything in their life, but they felt that this is not life. When they saw a dead person or when they saw suffering outside, they left everything and they went into celibacy. They went into religious path. So this is the confusion related to Pisces. So it is a 12th. It is a sign of monks ruled by Jupiter. So this confusion is always there. Whether to get married or to become a monk, whether to be ambitious or whether to be contented, whether to be emotional, whether to be practical, whether to be benevolent, whether to be selfish. And it is a watery sign. So that emotional quotient becomes very strong. It is a flowing sign again. So Pisces, you have to, if you are in religion, you have to be
if you're a religious, you have to have a strong Pisces sign or a Kark Rashi. But more than even Cancer sign or Kark Rashi, Pisces is much more religious or much more syphilitic also, which you can say. So Pisces is a female, dual and watery sign. It's a sign of saints. Being a female sign makes the person mild, affectionate, sympathetic, helping in nature. Being a dual sign makes the person indecisive. They get influenced by people and can have a conflict between religion and duties towards home. So this conflict is there in them. Whether I have to be like Meera, whether I have to follow my domestic life or whether I have to follow my life, my love or my life towards Krishna. Being a watery makes the emotional, becomes them emotional, religious, duty conscious and timid. Lord of Pisces is Jupiter, makes them intelligent, wise. So for moksha, it is very important to have Pisces as the sign. They are givers and they have a tendency to give and affected by sorrow and misery around them, leading to financial losses. Pisces rules the foot. So diseases are again psychotic disorders or psychosyphilitic if there is stagnancy out there. So diseases are gout, ear infections, spurs, tumors. So we have got a constitutions who are mild, religious, diligent, motherly, indecisive, contented, aversion to sex, desire to be magnetized, strong principles. Dominant miasm is psychosis. So all contended remedies will come under spices. So remedies indicate opium, cocculus, maxulf, to some extent staphylos aureus also. All metals you can think about as far as spices is concerned, but more towards contentment. So female personalities whose moon sign spices are like Hillary Clinton, Kamal Hassan, Rahul Dravid, Sham Benegal, moon sign, not Lagna sign. Hmm. So this is related to Pisces. Any questions? So we complete all the 12 signs. So from how now to summarize why science becomes important, science becomes backgrounds in which the planets are placed, or it is the base in which planets are placed, and houses becomes the activators. Like I said, if you have a strong planet, let's say you have Mars in 10th house, Mars in 10th house becomes very strong. And if it is Makar Rashi or Capricorn, where it becomes exalted, so the person will have a Martian strength, a very strong strength. Means he will be a dictator, he will be a commander, he will be a military officer. But then at the same time, if the background is not related to Capricorn, if the Rashi out there is not Capricorn, but the Rashi out there, even though it is 10th house where Mars is strong, you have got Rashi of Cancer out there. It's a watery sign. Sir, please read one chart. Which chart? I have sent on WhatsApp. Okay, I'll just see that.
So if the person is a watery sign, like Mars in 10th house, but in a watery sign of Cancer where it becomes debilitated. So that person is not going to be a commander, or that person is not going to be a police officer, or he's not going to be a military person. He may be a person whose career could be in merchant navy, or he could be a person whose career could be in a boiler, where he's working in hot environment, and he may not be a company commander or a military person. So that is how signs will make the background, will make the difference. So the rashis in which the planets are placed and houses, so you have to interpret. When we are able to interpret this planets, houses and signs together, we will get a remedy. So now our biryani is complete. Now we are all ready to prescribe or diagnose. So now let us come to this case where she has सर नक्षत्राचं थोडंसं सांगा ना सर, एक लेक्चर नक्षत्राचं होऊ द्या ना सर. नक्षत्राचं करूया ना आता, पहिले बेसिकचं संपू दे. ओके सर. नक्षत्र वुड बी व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड होईल ते. ओके सर. जसे जसे केसेस करत जाऊ, वी विल डू नक्षत्रस. ठीक आहे सर. सो नाउ दिस इज द केस. ओके, अच्छा, मीन लग्न आउट हियर. वी आर स्टडीइंग मीन लग्न ओनली. So mean Lagna, we have got Rahu and Jupiter in Lagna. Now again, Rahu and Jupiter, what is the dosha? Chandala dosha, sir. Chandala yoga. बरोबर है. Now अर्धकाल सर्प योग sir, also moon is out of moon. अर्धकाल सर्प है. अर्धकाल सर्प योग. अर्धकाल सर्प है. But now this dosha is there. But the good point out here in the chart is की नवांशामध्ये हे दोन्ही एकत्र येणार नाही. Jupiter and Rahu will not be together because Jupiter's degree is 28 degrees and Rahu degree is 6 degrees. So they are quite far from each other. Means even though the dosha is there, it is not so much pronounced. And moon is in 4th house. So Lagna degree is 23. तो Lagna degree, close planet to Lagna is Sun. Sun is debilitated. Okay. Now चलो तुम लोग बोलो अभी चार्ट के बारे में. First of all, Lagna, what is Lagna? मीन लग्न, Pisces लग्न. Mean Pisces Lagna. आणि कोण कोण? Guru in his own house. Jupiter in its own house and house. But with Rahu. तो दोषा आला, पण Jupiter in own house is good. Good. तो Jupiter and it is in Trikon. Guru is at Trikon. What काय त्रिकोण काय? म्हणजे केंद्रात आहे किंवा त्रिकोणात आहे असं म्हणाल होते मी. Jupiter first house is good ना? Yes sir. तर आता कसं मालूम आहे ना, इफ यू हैव टू कन्सिडर दिस कुंडली, तर Jupiter in first house becomes strong in its own house. Moon in 4th house is again very strong. Moon in 4th house becomes strong because पारंपरिक मतलब main 4th house becomes Kark Rashi in normal kundli. So moon in 4th house gives it positional strength and it is alone. So again moon is strong. Then sun is weak, sun is debilitated in Tula Rashi. Sun is in Libra, which is debilitated. So sun has become weak. Mercury, ठीक है, it is not combusted, fine. Then we have got Venus and Saturn in 9th house of Vrishik.
it is okay, Dharmasthan. Fine. Now interpret the chart. बोलो क्या characteristics होंगे? What does moon in fourth house mean? वो अपनी माँ से ज्यादा रिलेटेड होगा, Yes. और उसका घर अच्छा होगा, और Hmm. घर से वो बहुत ज्यादा प्यार करता होगा, Hmm. घर से ज्यादा सुख होता है। ये 3-4 पॉइंट उसके वहां से आते हैं। Yes. हाँ, घर पे he is content in his own house. घर पे सुखी है, मतलब he love to सुखी stay at home and is content and is very close to mother. मदर, हाँ। सर एक बात पूछूं सर? हाँ. सर एक पेशेंट है, इसका जो मून फोर्थ में है, Hmm. बट he has not good relation with his wife and he is staying outside from his wife. तो घर किसको माने, इसका पेरेंटल या? This is moon ना, moon मतलब मदर है, अच्छा, ओके। और वाइफ के मतलब साथ में तो फिर हम सातवां घर देखेंगे। सातवां घर नहीं देखेंगे। नहीं, मार्स वो की तो देखिए, मार्स की तो है ना, वो एक मांगलिक भी मिनट है। सर। ए पर्सन हु ऑलरेडी हैज फैमिली मींस बच्चे हो गए, तो इसका खुद का तो घर हो गया ना, तो इज पेरेंट्स आर नो मोर, तो इस अभी क्या मानेंगे इसको फिर? वो पार्टनरशिप है ना, तो वो वाइफ के साथ में 7th हाउस में जाएगा। मार्स की तो है तो सर हम ये मदर मांगलिक भी है, और अब देखो यार, केतु है। अभी कोई नहीं रहे ना, पिताजी रहे ना माँ रहे, अभी तो बच्चे हो गए, बड़े हो गए What बच्चे। Rudra's point is logical. What he is saying कि बाबा घर उसका मतलब after parents, then his house environment should be good. That is what you are saying. बराबर है ना रुद्र? सर But हाँ. sir, 4th house does not mean your domestic house. It is basically the comfort place है वो comfort place है, लेकिन उसको फोर्थ हाउस को कोई तो प्लैनेट्स एफ्लिक्ट करते होंगे ना, right? Because वहां पर पार्टनरशिप प्रॉब्लम है, तो वो डोमेस्टिक उसमें आके यू आर अनकंफर्टेबल विद बिकॉज द पार्टनरशिप, नॉट बिकॉज बाकी कंफर्टेबल लाइफ होने के बावजूद भी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगा, वैसा रहेगा वो। नहीं वैसे जो भी दे सकता है, लेकिन रुद्र सर वो किधर भी रह रहा है। हाँ, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं, उसका 7th हाउस में प्रॉब्लम रहेगा, बट वेर एवर ही स्टेइंग ही विल बी कंफर्टेबल। इन दैट वे, ओके ओके, गॉट इट? मतलब कुछ सपोज भी मैं वो अपने अकेला घर रह से रहा हूँ। प्यार करता हाँ, होगा सर, कुछ भी वो अपने घर से प्यार करता होगा, हाँ, घर मुझे तो से ऐसा। प्यार करेगा। इट इज नॉट हाँ, नेसेसरी फैमिली। फैमिली मतलब 2nd हाउस आया, वाइफ मतलब 7th हाउस आया। हाँ, मैं जंगल में रहूंगा बट आई विल बी वेरी कंफर्टेबल। जैसे मैंने अभी टाओ फिलोसॉफी बोला, वो आदमी हट में रह रहा है, गांव में रह रहा है, एंड ही इज कंफर्टेबल आउट देयर स्टेइंग अलोन। He doesn't need his wife, he doesn't need his children, he doesn't need, oh no, he doesn't need anybody. तो वो भरे किधर भी रहता होगा, बट ही विल बी कंफर्टेबल। दैट इज व्हाट वी मीन बाय मून इन फोर्थ हाउस। मतलब मैं वृद्धाश्रम में भी रह रहा हूँ, लेकिन बट आई एम हैप्पी इन मी वृद्धाश्रम। व्हाट इट? गॉट योर पॉइंट सर, ओके किसी ओके। का 4 और 12 रिलेटेड होएगा, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, 12th का लॉर्ड 4th में होगा किसी का, मून सपोज 12th लॉर्ड है, मतलब 4 5 सिंह लग्न है किसका, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, 5 6 7 8। हाँ, ठीक है। तो मून वीक हो गया उधर, हाँ, नीच का हो गया, लेकिन पोजिशनल स्ट्रेंथ आ गया 4th हाउस में सिंह लग्न के लिए। तो वो बंदा रहेगा वृद्धाश्रम में, नहीं तो ही मे स्टे इन अ जेल और एन हॉस्पिटल, बट ही विल बी कंफर्टेबल। दिस इज व्हाट इट मीन्स। हाँ, it is not necessary that he is staying with his wife or with his children or with his relatives. वो अकेले भी ठीक रह सकता है। That is what even Dipanshu is saying. So the problem is related to wife. It is not related to house or his comforts. So in this case also, it is very similar. This person is comfortable in his own house, or he will be attached to his house. और मून किसका लॉर्ड है? 5th लॉर्ड अगेन।
तो ये मतलब बच्चों के साथ भी अटैच्ड होगी. सो दिस टाइप ऑफ अ पर्सनैलिटी, एक अगर ये राहु का नहीं होगा, हाँ, अगर हम लोग वो एस्पेक्ट नहीं देखे, इज अ टिपिकल होम मेकर टाइप ऑफ अ पर्सन, कुड बी अ होम मेकर टाइप ऑफ पर्सन. ये किसकी है केस? इसके भाइयों के रिलेशन भी अच्छे होंगे सर. ये थर्ड वाला है तो इसका मतलब भाई से भी इसके रिलेशन, उसके खुद के भाई बहन होंगे तो उनसे भी इसके रिलेशन अच्छे होंगे, और बच्चों के भी होंगे शायद. नहीं, ये किसकी केस है? एक सेकेंड. कजन सिस्टर निवेदिता. ओके, व्हाट्स हर एज? 31. ओके. तो थोड़ा बोलो ना उसके केस के बारे में. कैन यू स्पीक निवेदिता? बस माइक है आपका कि? यस सर. हाँ. सर इनको यूट्रस में फाइब्रॉइड है और अभी ये प्रेग्नेंट हैं, तो मुझे वही पूछना था अगस्त में डिलीवरी है कि सही रहेगा कि नहीं रहेगा. और एंग्री हैं, करियर ओरिएंटेड है, हस्बैंड पे गुस्सा रहता है इनको. मार्स केतु है. ओके, हस्बैंड पे गुस्सा है, करियर, लेकिन घर पे तो बहुत ये है वो, मतलब शी इज क्वाइट कंफर्टेबल विद, मतलब मदर के साथ काफी अटैच्ड है क्या वो? जी सर, फैमिली से बहुत अटैच है, बहुत केयरिंग है. हाँ, फैमिली के साथ बहुत प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू हस्बैंड है इसका केस में. जी बिकॉज सर. मार्स और केतु मांगलिक हो गई ना ये स्ट्रांगली. मार्स केतु मतलब डिटैचमेंट भी हो गया. यस सर. बट खुद वैसे रिलीजियस है क्या वो? हाँ सर, हैं वो, काफी रिलीजियस है. काफी रिलीजियस होगी क्योंकि जुपिटर आ गया फर्स्ट हाउस में. तो इसके केस में प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू 7th हाउस एंड 8th हाउस का भी प्रॉब्लम है. सन भी डेबिलिटेटेड आ गया है. तो सन किसका लॉर्ड है? 6th का लॉर्ड है, 8th में गया इसके केस में. लेकिन मुझे नहीं लगता बच्चों में कोई प्रॉब्लम आएगा करके. शी शुड कंसीव. सर अभी कंसेप्शन में. अगस्त में डिलीवरी है उनकी, तो वो वही पूछ रही थी कि सही रहेगा कि नहीं यस सही. यस यस, मुझे नहीं लगता है. दशा कौन सी चल रही है उनकी? पीरियड जानना जरूरी है ना अपने को. दशा देखो कौन सी है. सर डेट ऑफ बर्थ टाइम नहीं है उनका मेरे पास, बस ये भेजा था ये उन्होंने. भेजा है खाली. अभी ये देखिए ना, जैसे दीपांशु और रुद्र का अभी जो बात हो रही थी अपनी, सेम इज एप्लीकेबल इन दिस केस. द रिलेशंस ऑफ दिस पर्सन इज नॉट वेरी गुड विथ हर हस्बैंड. यस सर. हाँ, बट द रिलेशंस आर एक्सीलेंट विथ हिज मदर. खुद के घर माँ के साथ बहुत अटैच्ड है, खुद के घर के साथ बहुत अटैच्ड है, और बच्चों के साथ भी बहुत अटैच्ड होगी ये. ओके सर. ठीक है. हाँ. दूसरा चीज कैसे, जुपिटर स्वराशि आ गया लेकिन पितृदोष आ गया किधर ना किधर, तो फादर का दोष है इसको, और सूर्य नीच का है. फादर के साथ कैसे रिलेशन है इसके? सर दोनों मतलब उनकी बनती है, बट फादर से अक्सर लड़ाई हो जाती है. केयर करती हैं बट लड़ाई हो जाती है. हाँ, तो ये पितृदोष स्ट्रॉन्ग आ गया है फादर के साथ इसके केस में. ओके सर. बिकॉज सन सन गया 8th हाउस में डेबिलिटेड हो गया. सन इज फादर, और राहु जुपिटर भी है इस, नहीं सॉरी, एक कुछ तो कंफ्यूजन हो गया मेरे को. ये चांडाल योग है, सॉरी, नॉट पितृदोष. हाँ, दिस इज चांडाल योग. बट लेकिन अगेन देयर इज प्रॉब्लम विथ हर सन आल्सो. इसके एजुकेशन में कुछ तो इशू हुए थे क्या? जी सर, ये भी होम्योपैथिक डॉक्टर है. जब ये BHMS कर रही थी तो इनको कुछ सीजोफ्रेनिया हुआ था. तो ये कैसे मालूम है? राहु एंड जुपिटर का मतलब प्रॉब्लम क्या होगा? इट विल बी रिलेटेड टू एजुकेशन एंड करियर में, बिकॉज 10th का लॉर्ड है जुपिटर, और राहु इधर आ गया तो मतलब किधर ना किधर तो एजुकेशन रिलेटेड देयर वुड हैव बीन इश्यूज. प्लस 8 का जो 9th का लॉर्ड मार्स है, इट इज विद केतु. मार्स 26 डिग्री पे है, एंड केतु चलो लंबा है, सो दैट इज गुड अगेन. मतलब ये प्रॉब्लम से निकलती होगी, मतलब स्किज़ोफ्रेनिया से भी बाहर निकली होगी वो.
यस सर, अभी बिल्कुल सही है। एकदम सही हो गई होगी. So because now the distances between the planets are more, that is why वो निकल रही है प्रॉब्लम से. ओके सर. मतलब वो दोषा लेके आई है बट शी इज एबल टू कम आउट ऑफ इट. ओके सर. तो ये चीज है, लेकिन मुझे नहीं लगता इसको कुछ प्रॉब्लम होगा. एज फार एज कंसेप्शन इज कंसर्न प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कुछ भी. ओके सर. सर इनका करियर कैसा रहेगा ये बेबी के बाद? कुछ जॉब का सर एक सीए का किस डिस्कस करेंगे? क्या ये कर ले, मैं कहा टाइम अगर है तो एक सीए का केस चालू किया. आपने लास्ट जो सीए का केस डिस्कस किया था, द पेशेंट इज डूइंग वेरी वेल. हाँ, कैनाबिस दिया ना हम लोगों ने उसको. यस सर, यस सर. कैसे, हाउ इज ही? बहुत बढ़िया. एक भी फोन नहीं आया, खाली आया कि मेडिसिन खत्म हुआ, फिर से भेज दीजिए, वही बिना चेंजेस के. अच्छा, मतलब बेटर है ना वो कैनाबिस से. वेरी वेरी बेटर, वेरी मच. वेरी गुड. मैंने बोला था ना कैनाबिस एक्ट्स वेरी वेल. और सीए का भी करते हैं डिस्कस, बट इज ऑलरेडी 5:30 नहीं करते हैं तो भी. हाँ सर इनका जीसीएस क्या सोच सकते हैं? सर हाँ. ये फिफ्थ लियो साइन ये बच्चों का साइन है, और वो अभी गया है 6th हाउस में, और अभी वो प्रेगनेंसी में है, तो क्या इससे कोई बच्चों प्रॉब्लम का हो साइन सकता है? कैंसर है ना. मगर मेन काल पुरुष कुंडली में बच्चों का जो साइन है वो फिफ्थ है ना, वो नहीं नहीं 6 में वो गया है ना, नहीं नहीं तो उससे कुछ संबंध होता है क्या सर प्रॉब्लम में? नहीं 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 वहाँ नहीं सूर्य नहीं नहीं ना? नहीं 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 नहीं. तो फिर तुम्हारी लग्न कुंडली कंसीडर ही नहीं करोगे ना तुम. अगर काल पुरुष को से तुमको स्ट्रेंथ समझता है. मतलब ओके जैसे मून इज इन 4th हाउस ना, तो स्ट्रांग है. दैट ओके इज व्हाट इट मींस. एंड सर दैट स्टेफिसाइक्लिया केस इज आल्सो डूइंग वेरी वेल. पहले उसका बीपी 240/150 रहता था, अभी बीपी इज अराउंड 180 बाय 110 120 ऐसे है. अच्छा, मतलब कम हो रहा एंड है. हाँ, बीपी कम है. और अभी डायलिसिस 15 दिन हो गए, मैंने नहीं कराया अभी. कितना एंड पेशेंट क्रिएटिनिन है? क्वाइट कंफर्टेबल. अभी क्रिएट बीच में उसका 8 आ गया था, धीरे धीरे नाउ इट इज, लास्ट कल कराया था 12 पे है. बट पेशेंट अभी कंफर्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिजिकल सिम्टम नहीं. आई एम वेटिंग कि क्या है. हेमोग्लोबिन इज आल्सो इंक्रीजिंग, सो आई एम पॉजिटिव अबाउट दैट. नहीं नहीं, वेरी गुड. एलएम दिया है ना तुमने? मैंने 50 ml दिया है सर उसको. सिंगल डोज है कि चालू है? ऑल्टरनेट डेज में चालू किया, एक वीक फिर रोक दिया था, फिर वापस चालू. बट यू विल हैव टू कंटिन्यू दीपांशु, कंटिन्यूअसली इन दैट केस, एवरी डे. एवरी डे. तो मेरे हिसाब से एलएम देना पड़ेगा तुमको. मैंने तभी भी बोला था तुमको एलएम सोचो, मिलता है क्या देखो. गिव एलएम. एलएम मिला नहीं तो 50 m मिला मेरे को, मैंने वो दिया फिर. 50 कंटिन्यूस रिपीट नहीं कर पाओगे ना तुम, क्योंकि हाँ. साइकोटिक है ना. हम लोग वृश्चिक रिलेटेड बोलते हैं ना, किडनीज रिलेटेड प्रॉब्लम विथ हाई बीपी इज वृश्चिक, स्कॉर्पियो. तो स्कॉर्पियो इज अ फिक्स साइन, और एंड ये क्या बोलते हैं हम लोग, मार्शी साइन हो गया ना. तो उसको कंटिन्यूअसली तुमको रिपीट करना पड़ता है तो तुमको स्टाफ मेरे हिसाब से LM2 LM5 से चालू करो, तुम मिल जाएगा तुमको. अभी ठीक है 50 m, लेकिन 50 m रिपीट करो नहीं तो यू लूज द केस. अभी रिपीटेशन है सर उसका. फर्स्ट मैंने उसे एक वीक दिया था, वापस कंडीशन पूछी, 2-3 दिन ब्रेक किया, देन आई कंटिन्यूड कि मॉर्निंग में 1 डोज ही लो उसको. एवरी डे आई एम गिविंग डोज. हाँ तो ठीक है, वैसे चालू रखो, बट देन गेट LM, ही विल इंप्रूव फास्टर. ओके, आई विल गेट इट, बिकॉज़ मेरा जल्दी एक्सपीरियंस से नहीं है get- एलएम में कभी. नहीं नहीं, ब्यूटीफुल. मैं गारंटी बोलता हूँ तुमको, ही विल इंप्रूव वेरी फास्ट. And my dad got this corona. It was very severe. So he improved very drastically with 50 m of Legasis. Almost we lost him. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. वो अंदर ही. वेल, नहीं आशुतोष के भी फादर को मेरे ख्याल से, ब्रदर को 50 m दिया है ना हम लोगों ने. वेरेट्रम लास्ट 50 m दिया मुझे लगता है. आशुतोष के भी ब्रदर को भी ऑक्सीजन वाज गोइंग डाउन ना. हम लोग ने जो वेरेट्रम डिस्कस किया था, सिंह. यस सर, यस सर. हाँ, सब लियो में है ना उसके, जितने भी प्लैनेट से 11th हाउस लियो में है उसके. That was discuss, वो ध्यान है मुझे. वेरेट्रम से निकला वो. और एक चार्ट है योगी का, एक उसका था. सो व्हाट वुड बी जीसीएस? मुझे हिस्ट्री लगेगी क्योंकि इतनी टिपिकल नहीं है हिस्ट्री ये चार्ट उसका. तो विदाउट हिस्ट्री
क्योंकि ऐसे कुछ खास प्रॉब्लम हिस्ट्री के साथ करने में मजा आता है बहुत, एक डेवलपमेंट ऑफ वो होता है। सर वन क्वेश्चन सर, हाँ, इन व्हिच केसेस वी हैव टू गिव जीसीएस में सर? which cases you have to give GCS मतलब? In corona cases, Corona at cases. first stage. The GCS and the state should match ना. जैसे कोरोना में किसी का वेरेट्रम है सपोज फॉर एग्जांपल, हाँ, तो उसका जीसीएस वेरेट्रम है, हाँ, जो दिख रहा है अपने को, जैसे लियो था उसके केस में, हाँ, एंड वेरेट्रम इज वन ऑफ द वेरी गुड ड्रग फॉर ऑल फीवर्स ना एंड कोलैप्स कंडीशन. So that is why I suggested veratrum. The GCS and the state should also match. No, first important is the state should match. Okay. अभी डॉक्टर योगी के ही फादर इन लॉ है, ही इज नॉट हियर एट प्रेजेंट, मेरे ख्याल से अभी ग्रुप में नहीं है, अभी 20-30 दिन से एडमिटेड है. तो उसके केस में हम लोग ने कैसे गए, वी वेंट फ्रॉम स्टेट सिमिलिमम टू वी, मतलब पहले था उसको फैमिली 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 लग रहा था, 5th हाउस में मेजॉरिटी प्लैनेट्स है, तो वी गेव हिम काली सल्फ, तो काली सल्फ से निमोनिया से बाहर निकले. बट देन देयर आर मल्टीपल, वो कंटिन्यूस स्टीरॉइड्स दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, तो मल्टीपल ब्रेन में इन्फार्क्ट्स हो गया, तो वी गेव जिंकम, जिंकम से बाहर नहीं निकले. देन फिर देन वी रीटूक हिज केस, एंड फिर अभी फंगल इन्फेक्शन हुआ है जो मुंह में, जो म्यूको, जो ये ब्लैक फंगस जो है, तो 5th हाउस में है, एंड लैक्यूनर इन्फार्क्ट्स विद द पर्सन बीइंग ड्राउजी, और 5th हाउस इज स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो अगेन स्टैग्नेंसी आ गया, बट 5th हाउस इज रिलेटेड टू चिल्ड्रन. तो उनको मैंने बराइटा एसिटिकम बोला देने को कंटिन्यूअसली 30. एसिटिक एसिड इज बेसिकली एंजाइटी रिलेटेड. मेरे पास और एक अल्जाइमर्स का केस है बराइटा एसिटिकम का, अल्जाइमर्स डिसीज का है वो केस, ही इम्प्रूव वेरी वेल विद बराइटा एसिटिकम. तो 5th हाउस के से टारगेट करके हम लोग गए थे, जो ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स विद मल्टीपल इन्फार्क्ट्स एंड स्लो साइकोटिक टाइप ऑफ डिसीजेस जो वृश्चिक का है. तो कंटिन्यूअसली वी आर गिविंग हिम बराइटा एसिटिकम. आई थिंक सो ये स्टार्टेड, अभी मुझे मालूम नहीं है रिजल्ट क्या है उसका. So that is how we will analyze a case. So he is admitted for 1 month now. तो कंटिन्यूस स्टीरॉइड्स पे चालू है, एंड हाई डायबिटिक है उनको, तो उसमें विल गिव बराइटा एसिटिकम. ठीक है, इसका वी विल हैव टू डिस्कस. ये मतलब कुछ खास नहीं है, तो मेरे हिसाब से कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल देने की भी जरूरत नहीं है. शी विल रिकवर ऑन इट्स ओन. ठीक है, इसका केस शेयर करो फिर. दीपांशु. यस सर, वो प्रश्न कुंडली वाला है. अच्छा, प्रश्न कुंडली वाला है, ओके. हाँ, तो जब टाइम रहेगा तो करते हैं. तो फिर एक बार काम करते हैं ना दीपांशु, मंडे को करते हैं. हाँ, वी विल ओनली टेक योर केस, कुछ नहीं करते, मतलब एक सिस्टमैटिकली जाते हैं ना. हाँ, बिकॉज मेरा केस पूरा डिटेल में रहता है पूरा. हाँ, तो पहले केस तुम एक बार डाल दो, प्रश्न कुंडली भी डाल दो ना ग्रुप पे. यस सर. हाँ, केस और उसकी 2 बनाई थी कुंडली मैंने. एक तो जब फर्स्ट टाइम कंसल्ट किया था फोन पे, वो टाइम था मेरे पास में, और दूसरा जब फिजिकली किया था. सो व्हाट आई थॉट मैचिंग इज द फर्स्ट वाला. तो मैं वही डालता हूँ आपके पास में. हाँ, वही डाल दो, केस भी डाल दो, यू प्रेजेंट द केस. देन हम लोग वो पूरी केस जैसे हम लोग नोट्स पे करते हैं ना, लग्न, राइट, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था ये स्टैफिस एग्रिया का. सो वी कैन, दैट वाज वेरी वंडरफुल वे ऑफ सिस्टमैटिकली करेंगे हम लोग. विल गो सिस्टमैटिकली एंड वी विल डू इट. मतलब उसमें दशा भी कवर कर लेंगे, फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक, सब कुछ कोशिश करेंगे निकालने. खाली प्रश्न कुंडली है क्या, उसका एक्चुअल नहीं है क्या बर्थ डिटेल? एक्चुअल नहीं है सर, वो सब 65 के लोग 65 ईयर में, तो उनका नहीं रहता है ना. बट आई थिंक होगा इसमें भी, बिकॉज हमने कैनबिस वाला भी प्रश्न कुंडली पे ही निकाला था वो. अच्छा, कैनबिस प्रश्न कुंडली पे निकाला था ना हम लोग. हाँ, वो तो जिस दिन आए थे वही था. हाँ, ठीक है ना, ठीक है ना. तो जब वो केस पेपर में बनाता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली टाइम एंड डेट कैप्चर ही हो जाता है उसमें. सो बेस्ट पार्ट ये है. अभी तो मैं पर्पसली हाईलाइट कर देता हूँ कि मान लो कुछ लगा बाद में, ऑटोमेटिकली कैप्चर हो जाता है, तो इट हेल्प. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी. नहीं, ठीक है ना, वो डाल दो ना, वो करते हैं हम लोग मंडे को. विल टेक दैट केस
in details. ठीक सर, ठीक है, चलो, ओके, बाय बाय.